Good morning, students. As you know, we are discussing about chapter number 7, or chapter 7 is running, and we have started chapter number 7, which name is directing. In last class, we have discussed about the element of directing, which name was motivation. In motivation, we have discussed definition, its features, then motivation techniques, financial and non-financial techniques. Is it clear? Now in today's class we are discussing about the next element of directing, which is called as leadership. Is it clear? Now what do you understand by leadership? Basically, leader is a person who influences the behavior of others towards achievement of organizational goals. So that person is called leader, and the technique which is used by the leader is called leadership, or the relation between leader and follower is called leadership. Is it clear? So what is the importance, like why we need to learn about leadership? बेसिकली देखा जाए तो एक पर्सन जो होता है उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव है बहुत बढ़िया, लेकिन हमेशा रहेगा ये कोई गारंटी नहीं। लेकिन जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले हैं उनको भी चेंज करना ज़रूरी है। तो दैट मीन्स हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए जो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सके। किसके लिए? ताकि हमारे प्री डिटरमाइंड गोल्स अचीव हो सकें, और जो पर्सन है वो विलिंगली वर्क करें। इसी टर्म को हम कहते हैं लीडरशिप। Whenever we hear the success stories of any organization, जब भी हम किसी organization की success story सुनते हैं, we are immediately reminded of their leaders. सीधी सी बात है, organization अपने आप success की तरफ नहीं गई, उसके leaders जो होंगे वो उसे success की तरफ लेकर गए। Can you imagine Microsoft without Bill Gates, Reliance Industries without Ambani's, Infosys without Narayan Murthy, Tata without JRD Tata, Wipro without Azizi Premji? You would say it is not possible to achieve success without such great leaders. As we can see in these examples, there are some persons whose name remind us a good leader or effective leader. That means without these leaders, this organization can't achieve this position. कि जिस पोजीशन पर आज ये कंपनी चल रही है वो पोजीशन इन्हें अचीव नहीं हो सकती थी हम अगर इन लीडर के बिना बात करें तो। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है कि जब तक ये लीडर नहीं है तब तक ऑर्गेनाइजेशन का भी कोई एग्जिस्टेंस, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलने भी मुश्किल हो जाती है। इज इट क्लियर? सो हम जितनी भी बार ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस की बात करेंगे हम इन लीडर्स की भी बात ज़रूर करेंगे। The leader always plays a key role for the success and excellence of any organization. और जो लीडर है ये हमेशा एक अच्छा या की रोल, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए या उसके एक्सीलेंस के लिए। लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप, और इसीलिए हम लोग लीडरशिप के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इट्स इंपॉर्टेंस एंड क्वालिटीज ऑफ लीडर। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ नाउ द डेफिनेशन इज हियर। Leadership is the process of influencing the behavior of people by making them strive voluntarily towards achievement of organizational goals. ध्यान से समझना कि हम इसको पार्टीशन में पढ़ते हैं कि लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। लीडरशिप एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ हम इन्फ्लुएंस करेंगे द बिहेवियर ऑफ पीपल, लोगों के बिहेवियर को, बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरी, ताकि वो मन से काम करें टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। तो इसी टर्म को हम कहेंगे लीडरशिप। इज इट क्लियर? दैट मीन्स कि हम लोगों को इसलिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को इसलिए चेंज करना चाहते हैं ताकि वो मन से काम करें ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने के लिए। इस प्रोसेस को हम कहेंगे लीडरशिप। Leadership indicates the ability of an individual to maintain good interpersonal relation with the followers and motivate them to contribute for achieving organizational objective. Now leadership is based on relationship with followers. If the relationship between leader and follower is strong, then
the leadership will be effective. If the relation are not good, then a leader cannot influence the behavior of employee. For example, कि अगर दो के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं है तो जो लीडर एक्सपेक्ट करेगा या जो आपको एडवाइस देगा या जो बताएगा वो आप मानोगे नहीं। क्यों? रिलेशन अच्छे नहीं है। लेकिन अगर बॉन्डिंग अच्छी है, आपके रिलेशंस अच्छे हैं, तो आप काम जो दिया है वो भी करेंगे, मन से करेंगे और अपने एडिशनल एफर्ट्स भी देने का काम करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि दोनों के बीच में जो रिलेशन होते हैं वही इफ़ेक्ट करती है एक लीडरशिप। नाउ हियर आर सम फीचर्स ऑफ लीडरशिप। कि लीडरशिप के कुछ फीचर्स हमें गिवन है जो कि बताते हैं लीडरशिप के बारे में। फर्स्ट, an examination of the above definition reveals the following important features of leadership. First, leadership indicates ability of an individual to influence others. लीडरशिप एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, अगर आप में ये एबिलिटी नहीं है तो लीडरशिप भी नहीं होगी। इज इट क्लियर? सिंपल सी बात है कि जब तक हम दूसरों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, मोटिवेट नहीं कर सकते, एनकरेज नहीं कर सकते, तो हम लीडर नहीं कहला सकते। सेकेंड, लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ अदर। मैं आपके बिहेवियर को क्यों इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ? क्या आप काम नहीं कर रहे? अगर काम कर रहे हो तो मैं थोड़ी ना आपके बिहेवियर को चेंज करने, पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज करूँगा। नो, वी आर ट्राइंग टू चेंज योर बिहेवियर, वी आर ट्राइंग टू चेंज योर एटीट्यूड टू विच इज़ नेगेटिव टू पॉजिटिव। कि हम आपके नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसी वजह से हमने कहा कि ये जो है, ये लीडरशिप जो है, ये आपके बिहेवियर में चेंजेस लाना चाहती है। लीडरशिप इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशंस विद द लीडर एंड फॉलोअर्स। जो लीडरशिप है ये दोनों के बीच के रिलेशंस को शो करती है। कौन दोनों? द लीडर एंड द फॉलोअर, जो कि हमने अभी डेफिनेशन में किया था कि जितनी अच्छे रिलेशंस होंगे, जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी, उतनी ही अच्छी लीडरशिप भी होगी। इज इट क्लियर? लीडरशिप इज एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और लीडरशिप क्यों की जाती है? ताकि हम आपके बिहेवियर को, ताकि हम आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए मोटिवेट कर सकें। नेक्स्ट इज लीडरशिप इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। लीडरशिप एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रोसेस है। रीज़न क्यों है? क्यों है? सोच के देखो एक बार। वो इसलिए है क्योंकि हमने पढ़ा है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉरएवर या परपेचुअल सक्सेशन के लिए ओपन की जाती है। हम सोचते हैं कि हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया ये हमेशा चलेगा, कभी बंद नहीं होगा। और सीधी सी बात है, साल ईयर टू ईयर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे गोल्स भी हमारे फिक्स होते रहेंगे। तो उन गोल्स को अचीव करने के लिए, उन गोल्स को पूरा करने के लिए हमें रेगुलर बेसिस पर लीडरशिप करनी पड़ेगी, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर लीडरशिप करनी पड़ेगी। इसीलिए कहा, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इज इट क्लियर? ठीक है। द टर्म लीडर इमर्जेस फ्रॉम द लीडरशिप। जो लीडर वर्ड आया ये लीडरशिप से आया। एन इंडिविजुअल पजेसिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडरशिप इज नोन एज लीडर। और जिस पर्सन में ये फीचर्स होंगे जो दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, एटीट्यूड में चेंज लेकर आ सकता है, जिसके सबऑर्डिनेट से रिलेशंस अच्छे हैं, जो कॉमन गोल्स के लिए काम करवा सकता है, वॉलंटरी काम करवा सकता है, जो लगातार कर सकता है, तो उसी पर्सन को हम कहेंगे कि वो लीडर बन सकता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये समझना ज़रूरी है लीडर फॉलोअर रिलेशनशिप को। ठीक है, लीडर फॉलोअर रिलेशनशिप को समझना बहुत ज़रूरी है। रीज़न, क्योंकि लीडर तो केवल डायरेक्शन देता है, काम तो कौन करते हैं? एम्प्लॉय करते हैं। तो अगर डायरेक्शन सही नहीं होगा, डायरेक्शन अच्छा नहीं होगा, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे?
हमें बियर करने पड़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस। कौन से कॉन्सिक्वेंसेस? कि हमारे गोल्स अचीव नहीं होंगे, जिसके नेगेटिविटी के रिजल्ट्स हमें बियर करने होंगे, हमें लॉस भी बियर करना होगा। फॉर एग्जांपल लीडरशिप में हमने पढ़ा कि वॉलंटरी काम करवाने के लिए को ही हम लीडरशिप कहते हैं। और वॉलंटरी काम तब करोगे जब आप एक आइडियल फेस जो आपको कह रहा है, आप उससे अगर अट्रैक्टेड हैं, मोटिवेटेड है, तो ही तो आप काम करेंगे, अदरवाइज यू विल नॉट फॉलो एनी इंस्ट्रक्शन ऑफ हिम। यस और नो? जब तक रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो आप उसके इंस्ट्रक्शंस को क्यों फॉलो करेंगे? ठीक है। मैनी टाइम द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज एट्रीब्यूटेड टू द लीडर। कि हमेशा जो देखा जाता है, बहुत बार देखा जाता है कि जो सक्सेस है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, उसका पूरा क्रेडिट एक लीडर को दे दिया जाता है। बट ड्यू क्रेडिट इज़ नॉट गिवन टू द फॉलोअर। लेकिन फॉलोअर्स को कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता। मैनी फॉलोअर रिलेटेड फैक्टर्स लाइक, फॉलोअर्स के कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपको सक्सेस दिलाते हैं, लाइक उनके स्किल्स, नॉलेज, कमिटमेंट, विलिंगनेस टू कोऑपरेट, टीम स्पिरिट, मेक अ पर्सन एन इफेक्टिव लीडर। और ये एक पर्सन को इफेक्टिव लीडर में कन्वर्ट करता है। इट इज सेड दैट फॉलोअर्स मेक अ पर्सन अ गुड लीडर बाय एक्सेप्टेंस ऑफ लीडरशिप। और एक अच्छा पर्सन ही, एक अच्छा लीडर ही एक अच्छा पर्सन बना सकता है। ठीक है। और जो लोग उसे अपने आप एक्सेप्ट करेंगे वो एक अच्छा लीडर बनेगा। Therefore, it is to be recognized that both leader and follower play key role in leadership process. और इसीलिए माना गया है कि दोनों का ही एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है लीडरशिप में। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अगर हम बात करें तो क्वालिटीज ऑफ लीडर है नहीं सिलेबस में, इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप ये भी सिलेबस में नहीं है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग लीडरशिप स्टाइल, कि आखिर लीडरशिप कौन कौन से तरीके से की जाएगी। लीडरशिप स्टाइल की हम बात कर रहे हैं। और जैसा कि हमें पता है, हमारी जो एनसीईआरटी की बुक शो करती है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। द फर्स्ट वन इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक clear? The second is participative leadership, ठीक है। एंड द थर्ड इज फ्री रेन लीडरशिप। द थर्ड यही यहाँ लिख देते हैं, फ्री रेन लीडरशिप। So these 3 styles are used in leadership to influence the behavior. बेसिकली हम अगर शॉर्ट में हम बात करें, हम इन्हें 1 by 1 डिस्कस करेंगे विथ डायग्राम, देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। हम बात करें तो तीनों के अपने अपने मेथड्स। ऑटोक्रेटिक मीन्स इसे हम डिक्टेटरशिप भी कहते हैं। व्हेन ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द लीडर, व्हेन ऑल द डिसीजंस मेकिंग पावर इज कैप्ट बाय द लीडर, दैट मीन्स सारे डिसीजन जो है जब वो लीडर लेगा उसी को हम कहेंगे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। एक ऐसी स्टाइल जिसमें लीडर कुछ पावर सबऑर्डिनेट्स को भी दे देगा, दैट मीन्स जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो कलेक्टिव होगा, जो सबऑर्डिनेट्स होंगे उनका भी पार्टिसिपेशन होगा और जो लीडर होगा उसका भी पार्टिसिपेशन होगा। तो जब दोनों मिलकर डिसीजंस लेंगे तो उसी को हम कहेंगे पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। एंड द लास्ट इज फ्री रेन लीडरशिप। एक ऐसी लीडरशिप स्टाइल जहां एक लीडर अपनी सारी पावर्स अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देगा और उनके डिसीजंस में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, उनकी वर्किंग में इंटरफेयर नहीं करेगा, बिल्कुल फ्री हैंड दे देगा कि आपकी इच्छा हो जो करो, तो उसको हम कहेंगे फ्री रेन
leadership. Is it clear? So in next class we will discuss their advantages and disadvantages and the style with the diagram. Still, if you have got any doubt related to this topic, you can ask through WhatsApp. Thank you, students.